Yes, Spandan. Just a minute. Kindly unmute yourself. Yes, Spandan, kindly unmute yourself. Yes, sir. Yes. Can you please read the question number 3 on the screen? Yes. For an experiment in botany, two different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory conditions. Their height were measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graph. Yes. Very good, Spandan. Thank you. So now, students, in this question, we are talking about again line graph. It is again same type of question जहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रीड करना है एंड आंसर्स करना है. ठीक है. So now in this question, let's have sub question 1. Sub question 1 is, how high was plant A after 2 weeks and 3 weeks? On x axis we are having number of weeks. फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में प्लांट जो है, प्लांट ए एंड बी, देर आर टू प्लांट्स नाउ. दो लाइन ग्राफ एक साथ दिया आप लोग को. इसका हाइट दिया है ऑन वाई एक्सिस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हाई वॉज प्लांट ए. प्लांट ए के बारे में हम लोग बात करें. प्लांट ए मीन्स व्हाट? द फर्स्ट लाइन, जो बोल्ड वाला लाइन है, देखो वो वाला लाइन हम लोग को देखना है, उसका पॉइंट देखना है. अभी कंफ्यूज करने के लिए दो दो पॉइंट दिए. ठीक है, सो बी केयरफुल. Plant A means the normal line and plant B means the dotted line. So 2 weeks, that means on x-axis 2 weeks over here. This is plant A. 2 से लेकर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे. इट इंटरसेक्ट एट 6 and 8 के बिटवीन. तो 6 and 8 के बिटवीन व्हाट इज द आंसर? इट शुड बी 6.5 or 7. Yes, perfect. Very good. The answer should be 7 centimeter between 6 and 8. Don't forget to write units. Coming to next one, that is 3 weeks for plant A only. Plant A के लिए 3 weeks का height कितना था? So from 3 weeks we are going to draw a vertical line and answer क्या आ रहा है? 8 to 10 के between. तो 8 to 10 के between, the answer should be 9. Very good. Superb. I'm getting from answer from everyone so fast. Great. So 3 weeks का answer is nothing but 9 centimeter high. Second question. Now this question again, I hope you all can solve. Very simple question, students. Yes. 2 weeks. Tell me. Now it is regarding plant B. That means this dotted line. Plant B 2 weeks का आंसर. What is 2 weeks का आंसर? दोनों के लिए सेम ही है. यहां से हम लोग पॉइंट चेक करेंगे. इट इज बिटवीन 6 to 8. Between 6 to 8. That means the answer is 7 centimeter high. 3 weeks. Plant B के लिए 3 weeks. That is 10 centimeter high. As simple as that. So I hope you all can solve it by your own. In textbook itself आप लोग वहां पे बाजू में आंसर लिख के रखोगे, चलेगा. Waiting for 30 seconds. Kindly note the answer in your textbook if you are having, or you can just take a screenshot. Or if you are joining by laptop, you can take a peek. Very good. Last 10 seconds, students. A हो गया, B हो गया. Now let's come to C. C में क्या बोला है? How much did plant A grow during the third week?
how much did the plant A, plant A means the normal line, grow during the third week? थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ है हम लोग को चेक करना है, राइट? सो विल फोकस ऑन प्लांट ए, दिस नॉर्मल लाइन। दे आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ है। तो थर्ड वीक का आंसर हम लोग को बताना है खाली। थर्ड वीक में उसका हाइट कितना है प्लांट ए का? प्लांट ए का हाइट इन द थर्ड वीक इज 8 और 10 के बिटवीन, दैट इज 9 सेंटीमीटर। सो दैट्स इट, इतना ही लिखना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देंगे तो थोड़ा हम लोग को बड़ा सा समझना पड़ेगा आंसर क्या करना है। आएगा सबको, बट क्वेश्चन बड़ा सा समझना। सो द आंसर इज 9 सेंटीमीटर। नाउ बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। हम लोग को क्या बोला है? हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो, प्लांट ए ने कितना ग्रो किया है थर्ड वीक में। मतलब बेसिकली हम लोग को कंपैरिजन करके दिखाना है कितना ग्रो किया। ये तो करेक्ट है कि 9 सेंटीमीटर तक ग्रो किया, बट कितने से ग्रो किया हम लोग को पता नहीं। सो सेकेंड वीक का भी हम लोग पहले लिखेंगे। सेकेंड वीक का आंसर कितना है? इट इज 8 and 6 के बिटवीन, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का कंपैरिजन सेकेंड वीक से लेकर थर्ड वीक तक कितना ग्रो किया है। सेकेंड वीक से लेकर थर्ड वीक तक मतलब अपवर्ड ट्रेंड में कितना है? इट इज 2 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर minus 7 centimeter, that is 2 centimeter. So this is how you are going to find a difference. Once again I repeat, थर्ड वीक के बारे में बोला था। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं बोला कि थर्ड वीक में उसका हाइट कितना है। द क्वेश्चन वाज हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो, प्लांट ए थर्ड वीक में कितना ग्रो हुआ है एज कंपेयर टू सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक का आंसर थर्ड वीक का आंसर दोनों को माइनस करने का, 2 सेंटीमीटर। Have you all understood? Anybody has any doubt? Text me doubt. If it is clear, text me clear. Yes, getting reply from everyone so fast. All of you are very much attentive in this session. Superb. Coming to the next question, students. Be careful with this one. This time the question is, how much did plant B grow from the end of second week to the end of third week? क्वेश्चन बड़ा सा समझना। क्वेश्चन में क्या दिया है? प्लांट बी के बारे में हम लोग बात करें। सो लेट्स फोकस ऑन प्लांट बी ओनली, दैट इज डॉटेड लाइन। कितना ग्रो हुआ है सेकेंड वीक से लेकर थर्ड वीक तक, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया। सेकेंड वीक से लेकर थर्ड वीक तक कितना ग्रो हुआ है, मतलब सेम व्हाट वी आर गोइंग टू डू। पहले थर्ड वीक का आंसर कैलकुलेट करेंगे। थर्ड वीक में उसका हाइट कितना था? द हाइट वाज 10 सेंटीमीटर, बिगर वन, उसमें से स्मॉलर माइनस करें। तो थर्ड वीक में उसका हाइट था 10 सेंटीमीटर एज कंपेयर टू सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक का हाइट हम लोग चेक करेंगे। सेकेंड वीक का हाइट इज नथिंग बट कितना है? 6 and 8 के बिटवीन, दैट इज 7 सेंटीमीटर, राइट? सो कितना ग्रो किया है? दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट, वी आर गोइंग टू फाइंड अ डिफरेंस। 10 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, इन दोनों का डिफरेंस 10 minus 7, द आंसर इज 3 सेंटीमीटर उसने ग्रो किया है प्लांट बी ने, फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू थर्ड वीक। वेरी सिंपल। I want you all to write down this one in your textbook, or you can write in the notebook, or just take a screenshot. Once the lecture gets over, you can write it down. Super. Still students, there are some students जिन्होंने अब तक रीनेम नहीं किया है। संजीवनी, kindly rename. उमरा,
श्रेयांश, पारस, kindly rename. Yes. And the last one for this question, sub question E. During which week did plant A grow most? During which week plant A grow most? प्लांट ए के बारे में हम लोग को बात करना है. कौन से वीक में प्लांट ए ने सबसे ज्यादा ग्रो किया? तो सबसे बड़ा लाइन हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है? ग्रो मतलब अपवर्ड ट्रेंड में. यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रो किया है, राइट? सो प्लांट ए, दैट मीन्स दिस नॉर्मल लाइन, एंड सबसे बड़ा ग्रोथ यहाँ पे है फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक तक. ड्यूरिंग फर्स्ट वीक कितना ग्रो किया हम लोग, वो भी हम लोग दिखाएंगे. सो फर्स्ट वीक में द आंसर वॉज 0 and 2 के बिटवीन, दैट इज 1 सेंटीमीटर, टिल द सेकेंड वीक. फर्स्ट वीक के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे, द क्वेश्चन वॉज ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट? कौन से वीक में प्लांट ए ने सबसे ज्यादा ग्रो किया? फर्स्ट वीक में उसने ग्रो किया है 1 सेंटीमीटर, और सेकेंड वीक में अगर चेक करेंगे तो उसने ग्रो किया है 6 and 8 के बिटवीन, दैट इज 7. सो दोनों का डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे, कितना ग्रो किया है. द ग्रोथ इज 7 - 1, यहाँ पे 6. सो नाउ ओवर हियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक प्लांट ए का ग्रोथ was 1 सेंटीमीटर. During the second week, plant A का growth was 6 सेंटीमीटर. During third week अगर चेक करेंगे तो थर्ड वीक का आंसर कितना था? 7 सेंटीमीटर, सॉरी 8 and 10 के बिटवीन 9 सेंटीमीटर, एज कंपेयर टू सेकेंड वीक का आंसर कितना था? दैट इज 7 सेंटीमीटर. तो 9 - 7, 2 सेंटीमीटर. सो बाय दिस वी कैन कंपेयर कहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ है. 6 का यहाँ पे ग्रोथ है, 6 सेंटीमीटर का ग्रोथ सबसे हाईएस्ट. और ये कौन से वीक में है? ड्यूरिंग सेकेंड वीक. आप लोग को एग्जाम में खाली आंसर ये लिखना है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड वीक, और यू कैन राइट सेकेंड वीक. अगर आप लोग ऐसे कैलकुलेशन करके नहीं दिखाओगे फिर भी चलेगा. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है. इट्स बेटर डायरेक्टली बाय लुकिंग एट द ग्राफ वी कैन से सबसे ज्यादा ग्रोथ हम लोग को कहाँ पे दिख रहा है? ड्यूरिंग फर्स्ट टू सेकेंड वीक. वी कैन से एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक वी कैन सी द ग्रोथ. सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, राइट? ये आप लोग कभी कर सकते हो जब भी आप लोग को ग्राफ में थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, दोनों भी लाइन सिमिलर लग रहे हैं, तभी हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय विच विल कम टू नो एग्जैक्टली कौन सा बिगर है. बट अभी यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है सबसे ज्यादा ग्रोथ फर्स्ट टू सेकेंड वीक में हो, राइट? F, during which week did plant B grow least? Now you are going to tell me the answer for this. Very simple. अभी कैलकुलेशन मत करो, डायरेक्टली बताओ मुझे प्लांट बी के बारे में सबसे लीस्ट, सबसे छोटा ग्रोथ कभी हुआ है प्लांट बी के बारे में. प्लांट बी मीन्स दिस डॉटेड लाइन, राइट? ड्यूरिंग कौन सा वीक आएगा सबसे लीस्ट? नाउ इफ यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे हम लोग को ना ये तो क्लियर है कि फर्स्ट टू सेकंड में सबसे ज्यादा है, तो वहां पे वो तो सिलेक्ट नहीं करना है. वी आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन दिस वन एंड द लास्ट वन. दोनों में से कौन सा हो सकता है आंसर सबसे लीस्ट? तो दिस टाइम यू कैन कंपेयर वीकली. फर्स्ट वीक का अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो फर्स्ट वीक का आंसर इज 2 सेंटीमीटर एज कंपेयर टू अर्लियर 2 सेंटीमीटर था. सेकेंड वीक के टाइम पे द ग्रोथ वॉज 6 and 8 के बिटवीन, दैट इज 7 सेंटीमीटर, राइट? एज कंपेयर टू फर्स्ट वीक का आंसर कितना था? 2 सेंटीमीटर. तो 7 - 2, द आंसर इज
5 सेंटीमीटर ग्रोथ था, ये सबसे ज्यादा है। एंड कमिंग टू लास्ट वन, लास्ट वाले में चेक करो, ड्यूरिंग थर्ड वीक का आंसर है 10 सेंटीमीटर एज कंपेयर टू सेकेंड वीक का आंसर था हम लोग का 5 सेंटीमीटर। 10 माइनस 5 सॉरी 7, 10 माइनस 7 द आंसर इज 3 सेंटीमीटर। तभी यहाँ पे देखो, जब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, हम लोग को जब भी लग रहा है कि यहाँ पे दोनों लाइन सेम सेम दिख रहे हैं, एट दैट टाइम वी नीड टू सॉल्व लाइक दिस, बाय विच वी कैन इजीली कंपेयर। सबसे लीस्ट आंसर कौन सा है 2 फाइन 3 में से? यस, करेक्ट, आंसर इज 2। दैट मीन्स कौन से वीक में? फर्स्ट वीक में। सो वी आर गोइंग टू राइट द आंसर एज ड्यूरिंग फर्स्ट वीक द प्लांट बी ग्रू द लिस्ट। प्लांट बी फर्स्ट वीक में सबसे कम होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर्स हम लोग देख सकते कम है, ठीक है, तो उसका डिफरेंस भी कम ही आएगा। बट लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 10 माइनस 7 द डिफरेंस was 3, so the least one was 2 centimeter. I hope all of you are very much clear with this kind of question. The last two questions थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन थे। Anybody has any doubt? Please text me doubt. If it is clear, text me clear. Yes, very good, superb. I'm getting a reply from everyone. Almost all of you are very much clear with the concept. Now students, the next question, that is G wala question, the last one for this third question, where the two plants of the same height during any week shown here, specify. यहाँ पे दोनों प्लांट्स का आंसर कहाँ पे सेम हाइट का हम लोग को दिख रहा है क्या? Where the two plants of the same height during any week, कोई ऐसे वीक में दोनों का हाइट सेम ऐसा है? यस, हियर यू कैन सी दोनों का हाइट क्या है? सेम है। यहाँ पे दोनों का हाइट सेम है एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। परफेक्ट सूर्यांश, वेरी गुड। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट द आंसर एज एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक के एंडिंग में प्लांट ए एंड प्लांट बी आर हैविंग द सेम हाइट, राइट? Have you all understood students? Very simple question, just हम लोग को ग्राफ देख के आंसर करना है, which comes in the exam for 3 or 4 marks. Now students, this question, the fourth question, you are going to solve as a homework. ये आप लोग को होमवर्क में करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, you all can solve. So mark it as a homework. ये वाला क्वेश्चन आप लोग ऐसा होमवर्क करके करोगे, सेम लाइक द प्रीवियस वन, ओके? Now, after this, proceeding with the next question, that is question number 5. This question, where we are going to understand how to draw the linear graph with the help of the given data. Now, there are some data given to us with the help of which we are going to draw a linear graph. अब तक क्या होता था स्टूडेंट्स, हम लोग को ग्राफ रेडीमेड दिया रहता था, and with the help of that graph we were giving the answers. Now this time it is reverse. The data is given to us, and with the help of this data we need to draw a linear graph. Now obviously graph draw करने के लिए we need scale, pencil, everything, graph paper, right? तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट फॉर दिस आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल ब्रेक ओवर हियर। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे till 11:15, 10 minutes का we are going to take one small break, ठीक है? And I will request all the students to kindly rejoin again with the same ID at 11:15. 11:15 तक सबको फिर से rejoin करना है again with the same ID. 11:15 को सबको फिर से join करना है again with the same ID. During this break time, you can solve question number 4 का answer also. After which we are going to start with question number 5. Today we are going to solve the entire exercise.
In this exercise, total 7 questions are there. We are left with only last 3 questions. Question 5, question 6, question 7. So we'll take small break of 10 minutes here and 11:15 को हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे 11:15 से लेकर 12 o'clock तक. ठीक है. So I request all the students to kindly rejoin again at 11:15. We are taking one small break of 10 minutes. Yes, Arnab Bani, we are taking one small break. We are studying Introduction to Graph chapter number 15. Okay, so we have started with 10 a.m. Now it's 11:06. We are going to start at 11:15. So kindly leave and join again at 11:15. Thank you so much everyone. We'll see you all at 11:15 again.